Okay, today we will discuss about artificial intelligence techniques. Okay, what is the purpose of these techniques? First of all, basically, whenever in your organization there is a set of huge databases, and sometimes you need to find some specific data from that set of data. So you need those techniques which are very efficient and which are very fast. So that's why these intelligent techniques are used there to find the specific data set in less time and in very efficient manner. So purpose is just collection of data. So that means the data is already there, database is already there, and you just need to find or extract the information from that data which fulfill your need at that point. So intelligent techniques are used to capture individual and collective data knowledge. Individual mean कि this may be your personal requirement, one personal requirement. If, for example, I need all a specific information for some certain task, or it may be some collective knowledge. For example, for department, यानी मेरा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिपार्टमेंट है या सपोज मेरा जैसे हमारा स्कूल है SBE, तो अगर हमें कोई ऐसा डेटा सेट चाहिए दैट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ द स्कूल और डिपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड collective knowledge. And sometimes this is only for me only, then that is called individual knowledge. So it means by using same techniques, you can find the data for your own personal use, or you can get data for the group. And to extend knowledge base, that mean कि जब आपके पास नई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी तो आपका नॉलेज बेस जो है बढ़ जाएगा ना. जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसको जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन पता चलती जाती है, उसकी ब्रेन की जो कैपेसिटी है या उसकी जो पावर है वो इंक्रीज होती जाती है. So this is the same thing कि whenever you find new information from the data set, your knowledge base will be expanded. So these are the point. Those are basically the purpose of the intelligent techniques. First of all is to capture tacit knowledge. Tacit knowledge is the knowledge which is inside your brain. So it means कि अगर हमें किसी बंदे की अंदर जो उसके ब्रेन में है उस डेटा को कैप्चर करना है, तो you need intelligent techniques only. So conventional methods are not suitable to find or extract the information that is inside your brain. The only techniques which are called intelligent techniques are there to use or capture that type of knowledge which is inside the brain of a worker or some other person. And for that thing, for this type of requirement, you need expert systems. Case-based reasoning, fuzzy logic, these are the tools, or you can say systems, which are used to extract the knowledge inside your brain. तो ये एक्सपर्ट सिस्टम इज नॉट अ एक्सपर्ट सिस्टम, ये तो कुछ दो वर्ड नहीं है. दिस एक्सपर्ट सिस्टम इज अ ह्यूज इंफॉर्मेशन सेट जो कि हम बनाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए. केस बेस्ड रीजनिंग, फजी लॉजिक, ऑल all of three are example of capturing tacit knowledge. Second point, knowledge discovery. यानी अगर आपने बहुत बड़े साइज का डेटा फाइंड करना है, उसमें से कुछ डेटा सेट को निकालना है. टैसिट नॉलेज तो सिर्फ वो है ना जो आपके ब्रेन में है, किसी वर्कर के ब्रेन में है, तो वो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं हो सकता. दैट मे बी वेरी लिटल. फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू स्टडी सम डॉक्टर, तो उस डॉक्टर के पास क्या हो सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होगी किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के बारे में, किसी स्पेसिफिक पेशेंट के बारे में. जी, एनी क्वेश्चन? No, sir. हेलो No, sir. No question. सलाम सर, क्या हाल है? सो नॉलेज डिस्कवरी मतलब कि आपके पास एक बहुत बिग डेटा है, यू कैन हैव अ बिग डेटा, लार्ज, यानी कि यू हैव अ डेटा अबाउट पास्ट, अबाउट 10 और 50 ईयर्स डेटा आपके पास है,
और उस डेटा में से आपने कोई डिस्कवर करना है, कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है। अब ज़ाहिर बात है, इतना ह्यूज डेटा सेट होगा तो उसमें से किसी चीज़ को फाइंड करना इज़ नॉट इजी टास्क, but by using intelligent techniques you can easily find out what information you want to extract from that database. तो उसके लिए you have a neural network and data mining tools. Those can be used to extract the information from a big size data. तो ये भी हम देखेंगे इनकी डिटेल आगे जाके कि हाउ डेटा माइनिंग तो हमने लास्ट क्लास में, मेरा हाल उससे पिछली क्लास में डिस्कस किया भी था कि डेटा माइनिंग इज़ अ वे टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटा सेट वेयर यू वांट टू फाइंड सम पैटर्न्स, कि हम पैटर्न फाइंड करना चाहते हैं। सपोज के मैं देखना चाहता हूँ कि व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ माय कस्टमर्स एंड which type of products normally selected by my customer. तो वो डेटा माइनिंग का एक कंसेप्ट है। थर्ड पॉइंट इज जनरेटिंग सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, यानी आपके पास एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि जैसे आज हम देख रहे हैं कोरोना की वजह से, ठीक है, you want to find out कि how many persons are affected by coronavirus and how many person may be just treated properly by using coronavirus, or what are the impact of the vaccine on the public at a large scale. पूरी दुनिया है ना इसमें, यानी आपके सामने करोड़ों की तादाद में लोग हैं और उन पे आपने एक एक्सट्रैक्ट करना है, रिजल्ट निकालना है, तो वो एक आसान प्रॉब्लम नहीं है। एंड व्हाट जेनेटिक्स structure can be changed after the application of vaccine or other things during the treatment of a patient. Lungs में क्या हो रहा है? There are not one cell only, there are millions of cells, and you want to find कि what structure changes are there. So this is not easy task. Suppose कि जो आप जैसे DNA है, sometime you want to find want to analyze the DNA structure of a human being or some other animals for the sake of some other generation change. तो ये आसान नहीं है. This one is called complex problem. For this purpose again you have intelligent techniques. Those can be easily applied to find the solution for that. तो उसके लिए जेनेटिक एल्गोरिथम, तो इसको अप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं। इवन कि जो हमारे जो सिस्टम हैं जिनको हम यूज़ करके ये क्लास ले रहे हैं, दोज आर नॉट इनफ टू अप्लाई जेनेटिक एल्गोरिथम प्रॉपर्ली। यानी अगर आप उसको एक डाटा सेट दे दें एंड अप्लाई जेनेटिक एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो उसकी इतनी पावर नहीं है। यू नीड हैवी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज एंड मेमोरी एंड हार्ड डिस्क स्टोरेज स्पेसेस एज वेल। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी बिलियंस की तादाद का जो डेटा होता है उसको आपने एनालाइज करना है, उसकी बेस पे आपने किसी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करना है। एक पर्पस और इसका क्या है, ऑटोमेटिंग टास्क, यानी समटाइम यू वांट टू डू सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम। जो फॉर एग्जांपल किस वक्त कमरे की लाइट खुद ही ऑन होनी चाहिए, जैसे शाम के 7 बजे तो लाइट ऑन होनी चाहिए खुद ही, हमें स्विच ऑन ना करना पड़े। एट द सेम टाइम जब आप सुबह मॉर्निंग में आप दिन सूरज लाइट आ जाएगी तो उस वक्त लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए खुद ब खुद। तो दिस वन इज कॉल्ड ऑटोमेटिंग टास्क। So there are a number of ways in which you can apply intelligent techniques to do all of these operations automatically by the system. तो system खुद से identify करता है कि what is the need and requirement for the time and which things are you have to do at that point. जैसे आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तो दैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस टू आइडेंटिफाई कि which file is not suitable for your system and what is the best time to take a backup of your files. All these are called automating the task. उसके लिए हम इंटेलिजेंट एजेंट्स, इसकी एक एग्जांपल है जिसको यूज करके हम ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो here you can learn that कि these are the intelligent techniques जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। एक्सपर्ट सिस्टम, केस बेस्ड रीजनिंग, फजी लॉजिक, न्यूरल नेटवर्क्स, डेटा माइनिंग, जेनेटिक एल्गोरिथम्स एंड इंटेलिजेंट एजेंट्स। तो ये सारे वो टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने सिस्टम को, अपने डेटाबेस सिस्टम को, अपनी डेटा रिक्वायरमेंट को इंटेलिजेंटली हम बेहतर इम्प्रूव कर सकते हैं। यू विल आर in better position to decide about something in a lesser time and shortest time.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो वर्ड नीचे लिखा हुआ है, तो दिस वन इज सिंपली यू कैन से द ग्रुप नेम ऑफ ऑल दीज टेक्निक्स। यानी अगर हम इन सारी टेक्निक्स को ग्रुप कर दें तो ग्रुप नेम जो है उसका क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो डिफाइन अगर हम करना चाहें कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो सिंपली यू कैन से कि दिस इज अ कंप्यूटर विच जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। तो दैट सिस्टम जस्ट एमुलेट और शो यू कि वो एक ऐसा बिहेवियर शो कर सकता है जो एक ह्यूमन कर सकता है। यानी कि आप इंटेलिजेंटली चीज़ें कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर। जैसे कि आप किसी वक्त भी बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, कंप्यूटर नहीं ले सकता, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ वो डेटा सेट पे डिसीजन ले सकता है जो उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। बट यू कैन आल्सो process those requirements or data which is not normally available to computer. So it means that human beings is more intelligent as compared to computer, but not in longer run. Longer run में ऐसा नहीं है. That is just for the short time. यानी कि आप अभी फ्रेश हैं, ठीक है, तो आपकी इंटेलिजेंस ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप टाइम गुजरेगा तो आपकी इंटेलिजेंस कम हो जाएगी. So you need a system which just सर एक्सक्यूज मी सर, टाइम गुजरने के साथ ह्यूमन की इंटेलिजेंस कम कैसे हो सकती है? इफ somebody was gathering knowledge and learning, then how can it possible after some time man can lose his, मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर कि टाइम गुजरने के साथ कोई इंसान की इंटेलिजेंस कम हो जाए? अगर हम बात करें, सबसे बड़ा फैक्टर उसका एज है. जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है तो उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो कम होता जाता है, वो उतना उसकी मेमोरी शॉर्ट होती जाती है, उसकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग नहीं होती उस वक्त, वो बेटर डिसीजन नहीं कर सकता. उसके बाद अगर हम बात करें एक शॉर्टर मीटिंग की भी बात करें, अगर आप किसी विद इन द मीटिंग किसी क्लासरूम में बैठे हैं, जैसे आप फर्ज करें आपकी 4 क्लासेज हैं आज, एक सुबह 8 बजे थी, एक 11 o'clock पे थी, एक 2 o'clock पे थी, एक अब 3:30 पे है. जब आप सुबह मॉर्निंग में आए थे तो यू आर मोर फ्रेश एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट गिवन बाय द टीचर. बट एट दिस मोमेंट जब आप 3 क्लासेस ले चुके होंगे और अब यहाँ पे क्लास 4th नंबर क्लास आप लेने जा रहे हैं, तो अब आपको टीचर की वो बातें समझ नहीं आ रही होंगी कि क्या कह रहा है टीचर. तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो वो ब्रेन पावर थी, वो जो ब्रेन की आपकी एक लेवल था वो डिक्रीज हो चुका है. Follow the point or not? Hello. Yes sir, clear है. Okay. So you need a system, a computer system which have all these capabilities to decide about something. A system which is expert, simple. That is called expert system. Just like a human being. एक expert होता है ना, किसी डॉक्टर है, किसी डिजीज का एक्सपर्ट है, तो वो उस डिजीज के बारे में उस पेशेंट को ज़्यादा बेहतर डायग्नोस कर सकता है, बेहतर उसको ऑप्शंस बता सकता है ट्रीटमेंट की. लेकिन अगर आप वही पेशेंट किसी आम डॉक्टर के पास चला जाए तो मेरा नहीं ख्याल वो उसको अच्छा ट्रीट करेगा. तो इसका एक एक्सपर्ट पर्सन चाहिए हमें. तो यही एक्सपर्टी अगर हम कंप्यूटर में फीड कर दें, then your computer becomes an expert system, becomes an artificial intelligence system that can easily decide about that patient disease और उसको ट्रीट कर सकता है बेहतर तरीके से. जैसे कंप्यूटर, जैसे हमारे जो कंप्यूटर चलते हैं ना, दोज आर बाइनरी कंप्यूटर्स. दे कैन ओनली अंडरस्टैंड 2 थिंग्स, येस और नो. यानी कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ है तो येस है, नहीं है तो नो है. जबकि ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर 2 नंबर नहीं होते, वो येस नो की बात नहीं करते. देयर आर लॉट ऑफ वैल्यूज बिटवीन येस एंड नो फॉर ह्यूमन बीइंग. जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ये क्लास पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, यू वांट टू लाइक दिस क्लास और नॉट, येस और नो, तो आप येस कहेंगे. आपके येस का जो मोड है वो क्या है, क्या आपने इसको दिल से कहा है, ठीक है, आप किस मोड में है. तो देयर आर नंबर ऑफ वेरिएशंस इन बिटवीन योर नो और येस. तो एक जो ह्यूमन बीइंग है उसका लेवल और एक कंप्यूटर का लेवल बहुत फ़र्क है.
तो फजी लॉजिक सिस्टम जो होते हैं, दोज आर बेसिकली कवरिंग ऑल ऑफ द एस्पेक्ट्स बिटवीन यस एंड नो आल्सो। यानी ऐसा सिस्टम जो कि आपकी यस और नो के दरमियान की वैल्यू को भी अंडरस्टैंड कर सके, कि अगर आपने इसको यस कहा है तो आपकी टोन क्या थी, आपने इसको अच्छे मूड में यस कहा है या नो कहा है तो उसकी रीज़न क्या है, 50% नो है या 100% नो है, 60% नो है या 10% नो है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका फजी लॉजिक सिस्टम अंडरस्टैंड कर सकता है। तो मतलब ये कहने का है कि वी नीड अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम विच जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग in solving the decision making process of the organization। तो अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं तो फिर एक वक्त ऐसा आ सकता है कि व्हेन यू डोंट नीड ह्यूमन बीइंग्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एज यू कैन सी इन लॉट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जहाँ पे वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो विदाउट एनी ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्वमेंट यू कैन सी कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वर्क कर रहे होते हैं। अगर इन्वॉल्वमेंट होती है ह्यूमन बींग्स की, ये नहीं कि बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, लेकिन जहाँ पे वो आपको 100% चाहिए काम करने के लिए, आप वहाँ पे 5 लोगों से काम कर रहे होते हैं या 10 लोगों से काम कर रहे होते हैं,